flip-flop. Okay, correct. JK RS flip flop, JK flip flop. Okay. So what do we mean by flip flop? Flip flop does means what for us? Yes. फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारे लिए? यस, लॉजिक ऑपरेशन करने में यूज होता सॉरी, यस, है। लॉजिक ऑपरेशन करने में यूज होता है। लॉजिक ऑपरेशंस करने में यूज होता है. लॉजिक ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ जस्ट सिंपल गेट्स. सीक्वेंस को help करते हैं. लॉजिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, सिग्नल्स के लिए यूज कर सकते हैं. अदर देन दैट और किसके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है? डेटा ट्रांसमिशन. ओके, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ईदर ऑफ वन और नन, तो उस केस में हम फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं. कैन वी टेक इट लाइक दैट? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है वो कैसा डिवाइस है? फ्लिप फ्लॉप इज बाइस्टेबल डिवाइस. yes, two state device, bistable device, can we say so? Yes, ma'am. यस मैम। yes, okay. So basically फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो बेसिकली हमारे डिजिटल डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, जो कि अभी आपने बताया कि ट्रांसफरिंग डेटा एंड एट द सेम टाइम टू स्टोर द डिजिटल डेटा एज वेल. क्योंकि डिजिटल डज मीन्स व्हाट? जीरोस एंड वंस. तो डिजिटल डेटा कौन से फॉर्म में रहेगा? जीरोस एंड वंस के फॉर्म में. तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे फ्लिप फ्लॉप्स का. फाइन. एंड characteristics of any of the flip flop? There are basic two characteristics of any of the flip flop. Sorry, two states रहेंगे for sure. Other than that, that is zero and one. हाँ, exactly. One of which is the complement of the other. हमारे पास यहाँ पे टू आउटपुट्स रहने वाले हैं, तो उन दो आउटपुट के अंदर से एक आउटपुट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करने वाला है फॉर अस, राइट? Is that okay? After that, how many different types of flip flops do we have? Four types. फोर टाइप। Okay, correct, good. And which are those four types? RS, JK, D और T। Okay, good. RS, JK, D, and T. RS stands for? रीसेट, सेट, फ्लिप फ्लॉप। Set, flip flop. Okay, correct. Very good. Means JK flip flop stands for? Jack flip flop. Okay, fine. So that's our JK flip flop. D and T we are not yet done with. Okay. Abhi triggering of flip flop. How can we trigger any of the flip flop? करके input की. Okay, correct. Very good. By changing the value of our input, we can trigger the flip flop, right? Other than this, flip flop trigger. ट्रांजैक्शन, कहाँ पे होता है? ट्रांजैक्शन। False. Sorry, False. ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे? क्लॉक पल्स. यस, करेक्ट. क्लॉक पल्स कौन से एज पे? पॉजिटिव या नेगेटिव एज पे? Positive edge पे. Correct, good. At positive edge our flip flop is going to be triggered. Okay, fine. दूसरा है like see there are few students who are new, right? जो very first time आज class attend कर रहा है I guess CO का. Yes. Is there anyone who is attending the class for very much first time? Anyone? If there is someone like that, then please do let me know. Ma'am, I think girls में कोई कृष्णा है. Okay. Yes, ma'am. And in boys में कोई है who is attending the class for the first time? Yes, ma'am. Third time. अभी Yes, join हुआ Kishan, हूँ. you are attending for the first time, right?
Okay. And Yes. Metalia Danish? Rajan Fufal? Yes? Are you people attending the class for the first time? Okay. Ishan is there. And in girls कौन है? आपने बताया अभी. In girls as well. Krishna. Okay, Krishna. Krishna and Kishan. See, basically हमारा एक यूनिट इसमें फिनिश हो गया है. We are working on second unit. हमारा second unit चल रहा है. So अब सेकेंड यूनिट के अंदर भी ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है. तो हमने वापस से मैं ये फ्लिप फ्लॉप से ही थोड़ा बहुत रिवाइज करवाते हुए जा रही हूँ. सो आगे का आपको समझ में आएगा. ठीक है. एंड विल मेक श्योर कि आपका कुछ भी मिस आउट ना हो जाए. इज दैट ओके? Yes, okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन. ओके. सो बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है. थोड़ा बहुत हमें गेट्स का नॉलेज है तो बाद में हम फ्लिप फ्लॉप के ऊपर काम कर सकते हैं. ट्रूथ टेबल इफ यू आर अवेयर अबाउट. फाइन. सो बेसिकली triggering of flip flop we know. Now next is about RS flip flop. When we are talking about RS flip flop, what's the like the scenario for RS flip flop? How many inputs will be there for RS flip flop? 2 inputs. To input and to output. Correct, very good. 2 inputs will be there, 2 outputs will be there. 2 inputs कौन से 2 inputs रहने वाले हैं यहाँ पे? R and S. Okay, R and S, that is set reset. Fine. And outputs कौन से रहेंगे? Q and Q bar. करेक्ट, वेरी गुड. Q and Q bar will be our outputs. Fine. यहाँ पे हमारा जो सर्किट बनेगा वो सर्किट के अंदर कैसे रहने वाला है? सर्किट हम जो बनाएंगे वहां पे हम इनपुट्स वगैरह कैसे पास करते हैं? ये साथ का इनपुट फॉर क्रॉस कनेक्शन करेंगे Q and Q bar का. ओके, करेक्ट. एक का जो आउटपुट रहेगा वो दूसरे के लिए एज ए इनपुट वर्क करने वाला है. राइट. तो सेम वे हम यहाँ पे हमारे क्रॉस इनपुट्स देते हैं. तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. दूसरा, जब आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जस्ट डू लेट मी नो. Yes, ma'am. Okay, ma'am. perfect. So this is our RS flip flop using NOR gates. हम NOR gates के साथ भी कर सकते हैं, NAND gate के साथ भी कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने NOR gate से पहले देख लेते हैं. R and S reset set, these 2 inputs are there. This S set and R reset, 2 inputs हमने यहाँ पे दिए हैं. दोनों इंडिपेंडेंट इनपुट्स हैं गेट्स के साथ में. अब यहाँ पे दूसरा इनपुट क्या जाने वाला है अलॉन्ग विथ R? जो हमारे S का यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है एंड विच इज आर Q बार. तो Q बार जाएगा यहाँ पे हमारे R के साथ में एज एन इनपुट टू दिस NOR गेट. एंड सेम वे यहाँ पे S के साथ में जाएगा हमारा Q एज आर इनपुट टू द विथ S फॉर द NOR गेट और मिलेगा हमें यहाँ पे Q बार. तो दिस वे इट वर्क्स फॉर अस इन आर NOR गेट. फाइन. अब NOR गेट के साथ में जब देखते हैं तो इसका ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगा मैं दिखा नहीं रही हूँ, पहले मैं पूछ रही हूँ. 0 0 डालेंगे S and R. My S is 0, my R is 0. तो क्या रहेगा इस केस में? When both are 0, No change. No change. it will hold the state. Fine. उसमें कोई चेंज ही नहीं आने वाला है. दोनों चीजें 0 हैं तो कोई चेंज नहीं आने वाला है. तो वो क्या करेगा? पहले का जो स्टेट है मेमोरी स्टेट उसी को होल्ड करेगा. मेमोरी स्टेट मींस व्हाट? हमने ये डिस्कस किया है कभी मेमोरी स्टेट? नो. ओके. मेमोरी स्टेट मतलब क्या है? होल्डिंग द स्टेट. मेमोरी में जो पहले से पड़ा हुआ है द सेम थिंग वी आर होल्डिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. फाइन. मतलब कि पहले सपोज Q का वैल्यू था 1 तो अगेन मेमोरी स्टेट बोला मतलब क्या होगा? अगेन Q का वैल्यू 1. करेक्ट. मतलब कि जो था उसके अंदर वही के वही मेमोरी को हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मेमोरी स्टेट भी. ठीक है. तो अगर मेमोरी स्टेट बोले मतलब क्या है? वी आर होल्डिंग द स्टेट. फाइन. नथिंग एल्स. ओके. तो यहाँ पे हमने स्टेट को होल्ड करना है. व्हेन आर इनपुट्स S and R are 0 0 वी आर गोइंग टू होल्ड द स्टेट. तो यहाँ पे Q रहेगा हमारा अगेन Q एंड स्टेट को हम होल्ड करेंगे. ठीक है. अब जब S है हमारा 1 ओवर हियर वी आर पासिंग 1 एंड R is our 0 तो क्या रहेगा? 1. करेक्ट. सो Q हमारा 1 रहेगा तो Q बार ये वाला आउटपुट हमारा क्या बनेगा? 0. करेक्ट. गुड. मतलब Q अगर 1 है मतलब क्या है? हमारा सेट ऑन है.
सेट मतलब कि हमारा वोल्टेज हाई हुआ वहां पे, ठीक है, हमारा वहां पे हाई स्टेट पे हम बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 0 एंड 1, जब एस हमारा 0 है, यहाँ पे 0 एंड यहाँ आर में 1 डालेंगे तो क्यू क्या मिलेगा हमें? 0 करेक्ट। एंड क्यू बार 1. मतलब ये कौन सा 1 स्टेट हुआ हमारा? रीसेट। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। reset. और जब हम डालेंगे s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू अगेन 1, देन हाउ आर आउटपुट्स विल बी? Ma'am, avoid करें. Avoid आएगा intermediate. We are going to avoid that particular situation. Why? Because यहाँ पे दोनों आउटपुट्स हमारे सेम कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ आर नॉर गेट, आर SR और RS हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो। अभी हम देखते हैं ये उसका नॉर का है, नहीं, कहाँ गया उसका ट्रुथ टेबल? ये रहा उसका ट्रुथ टेबल जो कि हमने डिस्कस किया, तो हम इसके साथ में वेरी मच क्लियर हैं, राइट। नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ आर NAND गेट। सो ये NAND गेट के साथ में हमारा RS फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे अगेन R बार एंड S बार हम इनपुट्स देंगे, और हमने NAND गेट यूज किया है, एंड ये बबल डज मींस व्हाट? आर NAND गेट, फाइन। तो आगे हमने कौन सा यूज किया? नॉट। यहाँ पे हम NAND यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन इनपुट्स 2 हैं, आउटपुट्स भी 2 रहेंगे, Q एंड Q। अब इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जब हम 0 0 डालेंगे तो क्या होगा? Avoid करें. बिल्कुल अवॉइड करें। we are going to avoid that particular scenario. क्यों? क्योंकि वो restricted scenario है। इनपुट कॉम्बिनेशन जब ऐसे डालेंगे तो उस केस में हमें सेम आउटपुट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे फाइन। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड जोन हो गया। दूसरा हम डालेंगे यहाँ पे सपोज 0 1, तो क्या मिलेगा? अगर एस बार डालेंगे ओके 1 मिलेगा, करेक्ट। और क्यू बार क्या मिलेगा? 0. करेक्ट। 0 ये कौन सा स्टेट हम बोलेंगे इसे? Reset. सेट, क्योंकि क्यू क्या मिला हमें? 1। क्यू सेट होगा ना? हाँ, सेट ही तो बोला, सेट ही बोला, सेट ही बोला। क्यू 1 है मतलब कि हमारा सेट स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 0, अगर हमने डाला है एस बार 1 आर बार 0 तो क्या मिलेगा? 0। और क्यू बार हमारा रहेगा 1, और कौन सा स्टेट हो जाएगा? रीसेट। Reset. जब दोनों डालेंगे हम 1 1 तो क्या होगा? Hold state. ओके। अब ना एक सिंपल लॉजिक लगा दो यहाँ पे कि आपने बिल्कुल इसका अपोजिट ऑफ हमारा हो रहा है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। लेकिन जब हमने नॉर के साथ में 0 0 डाला था तो हमें होल्ड स्टेट हुआ था, यहाँ पे 1 1 डाल रहा है तो स्टेट को होल्ड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो बार हम डाल रहे हैं, एस बार जा रहे हैं, मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इन वे यहाँ पे जा कौन रहा है? 0 0 हमने जब 1 1 डाला तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो इन वे 0 0 में क्या था? नॉर में भी होल्ड द स्टेट। ओवर हियर एज वेल व्हाट वी आर गोइंग टू डू? We are going to hold the state. We are going to be in our memory state. Are we clear with this? यस सर। Okay, fine. एंड ये हमारे RS फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पे हमने 2 इनपुट्स S एंड R पास किए, 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं Q एंड Q बार, फाइन। तो दिस इज इट विद आवर SR फ्लिप फ्लॉप। आर वी क्लियर? जो नए स्टूडेंट्स Yes, हैं वो ma'am. थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं। अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा, तो डोंट वरी एट ऑल। आपको धीरे धीरे जस्ट गिव सम टाइम एंड थोड़ा सा आगे का आप एक बार देख लोगे तो आपको ये भी इजीली समझ आ ही जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट आवर जेके फ्लिप फ्लॉप। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर जेके फ्लिप फ्लॉप, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट्स कितने रहेंगे? ओके, करेक्ट। नहीं है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे कितने इनपुट्स हमारे पास? 3 इनपुट्स आ गए। कौन से? जे, के एंड तीसरा कौन सा है? क्लॉक। करेक्ट, वेरी गुड। CLK stands for our clock. So 3 inputs we are passing over here. Again, outputs कितने मिलने वाले हैं हमें?
Two. 2, Two. correct, very good. Q and Q bar we are going to get two outputs over here. अब यहाँ पे आप देखो कि जब हम J and K दो हमने यहाँ पे इनपुट्स पास किए हैं, तो CL के जो है वो कैसे वर्क करेगा इसके साथ में? फ्लिप फ्लॉप जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? और 1 और 0 के हाँ बिल्कुल, दैट विच इज देयर 1 and 0 के ऊपर। पर J के फ्लिप फ्लॉप clock इम्प्लीमेंट, pulse. हाँ और क्लॉक पल्सेस के ऊपर, यस क्लॉक पल्सेस वी आर पासिंग ओवर हियर। अदर देन दैट अगर हम बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप इज बेस्ड ऑन आर एसआरएस फ्लिप फ्लॉप, मैम राइट? ओके, सो इन अ वे हमें जेके फ्लिप फ्लॉप अचीव करने के लिए क्या अचीव करने की बारे जरूरत है? आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप वी आर ऑलमोस्ट कंफर्टेबल विद। आरएस फ्लिप फ्लॉप का जो नांद गेट के साथ में जो हमने पढ़ा, इसकी हेल्प से बनने वाला है एसआर के नांद गेट की मदद से, ठीक है? यस मैम। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो था हमारा क्या था, ये बॉक्स था। अभी इस बॉक्स के अंदर ये इनपुट्स हमने जो डाले और आउटपुट जो हमें मिला, तो इन बिटवीन कौन से सर्किट्स, कौन से गेट्स, कौन सा कनेक्शन, क्या कुछ हुआ है वो हमें देखना है। तो नाउ वी आर गेटिंग इनटू मोर डीपर, फाइन। तो ये हो गया जे हमारा, ये हो गया के हमारा, यहाँ पे ये सीएल के क्लॉक, तो ये हो गया हमारा सीएल के क्लॉक। क्लॉक जो है डज मींस व्हाट? क्लॉक पल्सेस जाएंगे, मतलब कि डाउन मतलब 0 अप 1 0 1 0 1 0 1। दिस वे वी आर आल्सो पासिंग क्लॉक पल्सेस ओवर हियर। आर वी क्लियर विद आवर इनपुट्स? यस आई गेस, हाँ ओके। Yes. और दो आउटपुट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल आरएस फ्लिप फ्लॉप के जैसे ही, क्यू एंड क्यू बार, मतलब कि दो आउटपुट्स मिले, एक आउटपुट जो है वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? तो इनपुट आउटपुट यहाँ पे हम क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में। पहले सी ये जो है ना, हमें क्या करना है यहाँ पे, ये अपर एंड गेट और लोअर एंड गेट जो है ना, वो आप अगर नहीं सोचोगे ना तो अभी के लिए तो भी चलेगा। अब यहाँ से वो निकाल ही दो दिमाग से कि अपर एंड लोअर लिखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमें यहाँ पे ये सीक्वेंस में समझ आए, थोड़ा जो लेवलिंग बन रहा है उसमें समझ आए, इसके लिए यहाँ पे अपर एंड गेट एंड लोअर एंड गेट लिखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे ये आप सीधा ये और ये होता थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है? सो पहले ये समझो कि ये हमारा कौन सा हो गया, आरएस फ्लिप फ्लॉप एक हो गया, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे ये हम किसकी मदद से जेके को अचीव कर रहे हैं? आरएस की मदद से, ठीक है? तो एक आरएस तो बन गया। अब जो आरएस का ये आउटपुट आ रहा है उसे भी मुझे अगेन एंडिंग करना है किसके साथ में? के और क्लॉक के साथ में, ठीक है? तो यहाँ पे ये एंड के साथ में एक तो जे इनपुट गया, क्लॉक इनपुट गया, और आउटपुट किसका जाएगा यहाँ से? ये आर के पास से यहाँ पे जो क्यू बार हमें मिला है वो जाएगा एज एन इनपुट विथ आर अपर एंड गेट, ये वाले में गया, ठीक है? और यहाँ पे नीचे वाला देखिए, यहाँ पे एक तो के गया है, क्लॉक गया है, और साथ में हमारा जो क्यू का ये जो आउटपुट है वो गया एज एन इनपुट टू आर दिस वन लोअर एंड गेट। ये अपर एंड लोअर जो है वो थोड़ा सा दिमाग से निकाल दोगे ना तो भी चलेगा। सिर्फ अगर यहाँ पे आप नैंड गेट दो बना देते हो, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, और यहाँ पे क्रॉस इनपुट्स डालने हैं, और यहाँ पे तो क्रॉस इनपुट्स दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे क्रॉस बन भी रहा है, पर यहाँ पे अगेन हम क्रॉस बनाने जाएंगे ना तो ये बिल्कुल ही खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है? इसलिए हमने क्या किया है, ये वाला जो क्यू बार है उसे उठा के यहाँ से हमने एरो दिखाया है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके फाइन। तो ये ना आप रटना मत कभी भी, ये आरएस हमने समझा है, तो जेके किसके ऊपर है? सिर्फ इतना याद रखो कि जेके है आरएस के ऊपर, और जेके के साथ में 3 इनपुट्स होते हैं, तीसरा इनपुट है हमारा क्लॉक का, ठीक है? और हमें कितने यहाँ पे लेवलिंग बनाने हैं? 2 लेवल्स बनाने हैं, तो 2 बार हमें यहाँ पे आरएस फ्लिप फ्लॉप बना देना है, बस दैट्स इट। और आपको ये सर्किट रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका अपने आप ये हो जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं इसके ट्रुथ टेबल को। सो हाउ डज इट ट्रुथ टेबल वर्क? अगर मैंने यहाँ पे 3 इनपुट्स पहले तो डालने हैं, क्लॉक हमारा क्या रहने वाला है? हाई 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 हाई। जब क्लॉक हाई है उसी का हम बात कर रहे हैं। अगर हमारा क्लॉक जो है वो 0 है तो क्या होगा? इफ आवर क्लॉक इज 0, तो क्लॉक 0 है तो क्या होगा?
ट्रिगर नहीं होगा। हाँ, ट्रिगर ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपना जो पुराना स्टेट है वही होल्ड करके बैठा रहेगा, मेमोरी स्टेट में रहेगा। क्लॉक अगर 0 हो गया मतलब कि जे के आप 1 डालो 0 डालो कुछ भी डाल दो, उसका कोई मैटर नहीं करने वाला है, ठीक है। व्हाट दिस क्लॉक इज 0 एंड ओनली आर फ्लिप फ्लॉप्स विल ट्रिगर एट द टाइम ऑफ क्लॉक इज हाई, डज मींस कि क्लॉक पॉजिटिव एज पे है तब, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम स्टेट डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं। तो जब क्लॉक हमारा हाई होगा उस टाइम के सारी कॉम्बिनेशंस को हम चेक करते हैं कि J0 K0 एंड क्लॉक हाई, तो क्या आएगा? No change. नो चेंज, वो चेंज ही कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जे और के दोनों 0 हैं और वो वही के वही जो पुराना स्टेट है उसी के अंदर रहने वाला है, कोई चेंज ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अभी जे एंड के, जे को डाल रहा है 1, के को डाल रहा है 0 एंड क्लॉक इज अगेन हाई 1 0 हाई। ये जे गया हमारा 1, ये 1. हाई और ये रहा 0, क्या आएगा? 1. करेक्ट, 1 जाएगा। देन अगर हमने डाला j इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 एंड क्लॉक इक्वल टू हाई, तो 0. 0, करेक्ट, बिल्कुल उसका अपोजिट। और q बार जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि 1 हो जाएगा। देन j k 1 1 डालेंगे तो क्या होगा? Q dash. हाँ, q बार आएगा और q में क्या आएगा? Q. q बार ही आएगा ना, सही तो बोला। q में क्या आएगा? क्यों आएगा? हाँ, q में q बार आएगा और q बार में क्या आएगा? Q. क्यों बारी Q है? bar here. Very good. So in a way we are toggling it. Fine. Okay. So I guess now we are clear with our RS flip flop. We are almost clear with our JK flip flop, and now it's time to begin with our D flip flop and T flip flop. Fine. So D flip flop शुरू करने से, हाँ जी, yes. मैम ये जेकी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल लिखा था ना। हाँ, wait. Sorry, please. अच्छा, आप लोगों में से बुक कौन कौन, मतलब बुक काफी लोग लाए हो नहीं लाए हो, क्या स्टेट है? अदरवाइज मैं ये जो हमारे ट्रुथ टेबल्स वगैरह है ना वो आपके साथ सिर्फ शेयर कर देती हूँ, इसके डायग्राम्स एंड ट्रुथ टेबल, ताकि अगर आपको फॉर अ चेंज कभी कुछ देखना है पढ़ना है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, कि आप सिर्फ देखोगे, शायद से आपके थोड़ा सा भी टाइम है उसके अंदर इन बिटवीन, तो आप भूल नहीं जाओगे ये सारी चीजें। लाए मैम. या फिर है आपके पास बुक्स है? ले लिया मैम, बाय कर मैम ले लो। ली. अच्छा, फिर ठीक है, no worries then. Okay, next is about our D flip flop. When we are talking about our D flip flop, तो यहाँ पे भी again हमारे पास inputs कितने रहेंगे? Will be there 3 inputs. Okay, correct. अभी 3 inputs हम, वैसे तो हमने 3 inputs बोल दिया. Let me show you the diagram first. ये रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम फॉर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे कितने इनपुट्स हमने पास किए हैं? 3 इनपुट्स आता है, डी बार एंड क्लॉक। फाइन, तो इन वे हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे इनपुट्स? 3 इनपुट्स हो गए, पर और आउटपुट कितने मिल रहे हैं? 2 आउटपुट मिल रहे हैं। कौन से वो 2 आउटपुट्स हमारे पास? क्यू एंड क्यू बार है। हाँ, करेक्ट, गुड। सो बेसिकली क्या हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी अगेन जो डी फ्लिप फ्लॉप है ना वो भी एस आर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ही है, आर एस फ्लिप फ्लॉप के बेस पे ही है। लेट मी शो यू वंस। ओके, अभी ओके, ये हम इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है उसके ऊपर से बना रहे हैं। ये हो गया हमारा एस एंड यहाँ पे दूसरा क्या आएगा हमारा? आर विल बी देयर। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा आउटपुट? क्यू आएगा हमारा आउटपुट अगेन। क्यू बार। मैं क्यू डैश ऐसा बना रही हूँ ना, डज मींस कि वो बार है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बार नहीं है इसलिए। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से हमारे ये इनपुट्स वगैरह जो है हो जा रहे हैं। सो वेरी फर्स्टली एक तो हमने यहीं पे देख लिया सी कि एक है हमारा डी, ठीक है, डी इनपुट है और ये है डी बार और ये क्या है सीएल के क्लॉक, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसे कि हम एक ही इनपुट पास करें ये डी ही और बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट पास कर दे? कैन वी से सो? यस मैम। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे दो इनपुट्स पास नहीं करवाएंगे, इनपुट जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक डी और दूसरा जाएगा सीएल के क्लॉक। बाकी हम जो थर्ड हमारा इनपुट जा रहा है वो हम उसका कॉम्प्लीमेंट करके हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा एक यहाँ पे इनपुट, दूसरा जाएगा यहाँ पे हमारा क्लॉक, साथ में जाएगा हमारा डी बार, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इस समय रिमूव कर रही हूँ एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बार मुझे भेजना है। ये हो गया क्या हमारा डी, ठीक है, ये डी हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या जाना चाहिए, डी बार जाना चाहिए, ठीक है। तो डी बार की जगह पे क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पे इसी का ये हमने नॉट गेट बना दिया, थोड़ा सा नहीं ठीक लग रहा है, आई नो। मुझे रोटेट ये कैसे कर सकते हैं? प्लीज हेल्प मी विद दिस। ये तो आप जानते होंगे ना, इतना तो बोलो। यस मैम। यस मैम। लो इससे रोटेट करते हैं। अरे ये वो चलेगा मैम मैम। फर्स्ट लाइन में ट्रायंगल है, ये वाला मैम वो ट्रायंगल है ना उस ट्रायंगल है ना मैम फर्स्ट अरे लाइन। हाँ है बिल्कुल, हाँ। मैंने देखा ही नहीं, थैंक यू। करना पड़ेगा ना। ओके और ये हो गया हमारा बबल, फाइन। ओके तो ये इन अ वे क्या हुआ, हमारा डी बार हो गया, दिस इज आर डी, दिस इज आर डी बार और ये हो गया हमारा सीएल के क्लॉक। तो यहाँ पे भी हमें ये करना पड़ेगा। पूरा उठा के कैसे हटाते हैं? है ना, पेन का बहुत खराब हाल है अभी ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉक, फाइनली ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो ये हो गया CLK हमारा क्लॉक, ये हो गया हमारा डी बार, ओके डी बार। तो ओके क्या अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा SR सर्किट जो है पूरा का पूरा RS सर्किट वो हो गया ये वाला, और उसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या सिर्फ लगाया है D और D का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि अगर D मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 0 तो क्या मिलना चाहिए हमको वहां पे, D बार 1, ओके। और अगर हमने D डाला 1 तो D बार क्या मिलेगा, 0। 0।
Correct, good. So in a way this is how we are going to use this. तो in a way अगर हम देखने जाए इस पर्टिकुलर को, तो यहाँ पे हमें दो हमारे एक तो आउटपुट हो गए जो कि हमने बनाए ही नहीं हैं कि Q एंड Q बार जो है, तो ये हमारा एक आउटपुट हो गया और यहाँ पे हमारा ये दूसरा आउटपुट हो गया, ठीक है। ओके, तो इसी चीज को अगर हम देखें और सिंपल वे में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, ये अलग है ना, इसके साथ में इंक्लूड मत कर देना। एक ही हम डाल रहे हैं यहाँ पे डी, दूसरा डाल रहे हैं क्लॉक, और यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है क्यू एंड क्यू बार। फाइन, तो यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल सिनेरियो हो गया। अगर हम इन सबको ये हम बंद कर देते हैं तो मतलब कि और ये जो है बाहर हमारा आ गया CL के, तो क्या हुआ, दो इनपुट्स गए डी, CL के क्लॉक गया है, CL के क्लॉक गया हमारा, और यहाँ पे Q एंड Q बार, दो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारा एक ही मेजर इनपुट तो डी जा रहा है, दूसरा तो हमारा क्लॉक पल्स है उसे ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस मच? यस, ओके। क्या बोला आपने? फुल फॉर्म है? Yes, data, data. D stands for data over here. ओके मैम। Okay, so data flip flop, यहाँ पे हम डेटा के साथ में डील कर रहे हैं। So D stands for our data. Now ये तो हमारा हो गया। अभी हमें देखना है यहाँ पे कि हमारा सर्किट जो है, वो सर्किट तो हमने देखा। अभी R एंड S का सर्किट हम जानते हैं, राइट? तो R एंड S का सर्किट तो हम बना ही सकते हैं। Yes. यस मैम। ओके, तो बस वही चीज है, उसका एक तो हमें सर्किट करना है। RS फ्लिप फ्लॉप हम करेंगे यूजिंग से नॉर गेट की मदद से। लेट अस सी इसका हमारा जो सर्किट है हमारा वो कैसे दिखेगा। ओके, हियर इट इज। डी फ्लिप फ्लॉप जो है उसका सिमेंटिक डायग्राम है यहाँ पे। देखिए डी बार, यहाँ पे ये हमने सीधा डी बार पास किया और ये गया डी, और साथ में हमारा इनेबल जो है वो हमारा मान लेते हैं क्लॉक है, ठीक है। बेसिकली इनेबल डज मींस व्हाट? इनेबल क्या है? बंद करना। सॉरी, बंद। हाँ, कि अगर हमने इनेबल डाला हुआ है, मतलब चालू करना। हाँ, व्हेन वी वांट कि हमने कुछ भी डाला हो लेकिन सिस्टम उसके ऊपर रिएक्ट ना करे, तो उस केस में हम इनेबल पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इनेबल एक हमने और यहाँ पे इनपुट पास कर दिया है, क्लॉक की जगह इनेबल समझ लो यहाँ पे, ठीक है। इनेबल वी हैव पास्ड ओवर हियर। तो ये एक तो हमने नॉट हमारा कर दिया, मतलब डी बार हो गया, ये साथ में इनेबल गया, यहाँ पे डी गया और ये इनेबल गया। तो दोनों के ऊपर क्या किया? क्यों? क्योंकि दोनों इनपुट्स का एंड करना पड़ेगा हमें। यस, क्योंकि क्लॉक और डी दोनों के बीच में एंडिंग होता रहेगा, क्लॉक और डी बार दोनों के बीच में एंडिंग होता रहेगा। और फिर जाके यहाँ पे ये जो हमारा था बॉक्स, वो बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा? आरएस फ्लिप फ्लॉप। ये जो बॉक्स बना उसके अंदर क्या आया? आरएस फ्लिप फ्लॉप। ये तो सिर्फ हमने दो इनपुट्स के साथ ही अभी तक खेला है, यहाँ तक तो हमने इसको अलग तरीके से पास किया है विद आर डी फ्लिप फ्लॉप। आर वी गेटिंग दिस थिंग? हाँ ना? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। अब दूसरा कि व्हाई डू वी नीड दिस डी फ्लिप फ्लॉप? डी फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट क्या है? आपको देख के कुछ आइडिया है? नहीं, अभी नहीं आइडिया आएगा, वेट, हम ट्रुथ टेबल इसका देखते हैं, देन यू मे गेट सम मोर क्लियर आइडिया अबाउट इट। ओके, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर आवर डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने पास किया है क्लॉक एंड डी। तो डी बार तो आप समझ ही जाओगे कि उसका अपोजिट होने वाला है, एंड क्यू एन प्लस वन मतलब कि नेक्स्ट स्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज आर क्यू एन प्लस वन है। तो इसके लिए कैसे रहेगा हमारा, क्यों हमें जरूरत है इसका?
Why do we need this? ओके, आरएस का याद कीजिए। आरएस में हमने क्या किया था? आरएस के अंदर हमने बहुत सारे उसके कॉम्बिनेशंस वगैरह डाले थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक इनपुट जा रहा है डी, तो क्या उसके लिए हमें ज्यादा यहाँ पे परेशान, एक तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो आप कि हमें कितना, हमारा फोकस एरिया कितना है, बस इतना ही है। सी, ये जो है ना 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 सेल्स हैं वो हमारा मेजर फोकस एरिया है। क्यों ये मेजर फोकस एरिया है हमारा? व्हाई दिस इज आवर मेजर फोकस एरिया? मैम बाकी सब होल्ड कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, बाकी सब में तो होल्डिंग हो रहा है, तो हमें यहाँ पे किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करने का जरूरत है? डी अगर 0 है तो डी बार क्या हो गया? 1, और क्यू n+1 हमें क्या मिलेगा उस केस में? 0। और अगर हमारा डी जो है वो 1 है तो डी बार क्या हो गया? 0। हाँ, और हमारा क्यू n+1 मिलेगा हमें 1। सो बेसिकली दोनों में देखो आप, यहाँ पे क्लॉक हाई है उस समय का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि डी एक ही हमने इनपुट डाला है। अब आरएस में क्या था, हमें 2 इनपुट्स को ये ऊपर ध्यान रखने का जरूरत पड़ रहा था। आरएस में वी नीड टू फोकस ऑन आर 2 इनपुट्स, जहाँ पे हम आर इनपुट देखना था, एस देखना था, क्लॉक के साथ में डील करना पड़ता था हमें जेके के अंदर, फिर हमें क्यू n+1 यहाँ पे मिलता था। जबकि यहाँ पे हमारा जो बेसिक जो हमारा फोकस है वो सिर्फ यहाँ पे हमारे 2 इनपुट्स के ऊपर है, ये 0 एंड 1 वाला कॉम्बिनेशन। 0 डालेंगे डी बार बन जाएगा 1, आउटपुट आएगा 0। डी में 1 डालेंगे, डी बार बन जाएगा 0, आउटपुट आएगा हमारा 1। प्रीकर्सर इज ओनली दैट कि क्लॉक शुड बी अप, क्लॉक जो हमारा है वो हाई होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लॉक लो हो गया तो इसके अंदर कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉक ही लो है, क्लॉक लो होगा तो ट्रिगर ही नहीं होने वाला है, राइट। यहाँ पे ऊपर अगर क्लॉक 0 है मतलब ट्रिगर हो पाएगा ओवर हियर? नो, तो वहां पे भी नहीं हुआ, तो वो होल्ड कर रहा है स्टेट को। तो दैट्स द नीड, दैट्स द रिक्वायरमेंट और दैट्स द नीड फॉर आवर डी फ्लिप फ्लॉप, कि जहां पे हमें ज्यादा इनपुट्स के ऊपर फोकस करने का जरूरत नहीं है। एक ही अगर हमारा इनपुट आ रहा है तो उसके ऊपर भी हम फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा आउटपुट जो है वो एक आउटपुट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो सेम वे यहाँ पे इनपुट के अंदर भी हम सेम मेथोडोलॉजी नहीं अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल वी कैन डू दैट थिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पे डी डेटा फ्लिप फ्लॉप जो है उसका यूज किया है। आर वी क्लियर विद दिस मच? मैडम ये एक्स किसके लिए है बोला? कौन सा है? डी में एक्स लिखा हुआ है। एक्स नहीं है, एक्स ओके, एक्स नहीं है, ये क्रॉस है, मतलब कि यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ ओके, तो वी आर आई गेस क्लियर विद दिस मच। नेक्स्ट हम इसी के अंदर देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड हमारा एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो हम बनाते हैं इसका, ओके, सपोज यहाँ पे है हमारा, हम जितना हमारा इंटरेस्ट रीजन है ना उसके लिए ही बनाएंगे, ठीक है। पहले हम ट्रूथ टेबल बना देते हैं हमारा ये फ्लिप फ्लॉप का। तो क्लॉक हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे आएगा हमारा क्यू n+1 हो गया, ठीक है। आएगा सपोज क्लॉक हमारा लो है, क्लॉक हाई है, क्लॉक हाई है, तो है वो क्या हो जाएगा, जब क्लॉक 0 है तो डी क्या होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो होल्ड करने वाला है, तो क्या होगा, वो पुराने स्टेट में, अपने मेमोरी स्टेट में ही रहने वाला है, ठीक है। अब बी यहाँ पे हम डालेंगे सपोज 0, क्लॉक अगर 1 है, बी 0 है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0। हाँ 0। सी, डी 0, क्लॉक इज हाई, तो क्या आएगा आउटपुट हमारा? 0। हाँ बिल्कुल, तो हमारा आउटपुट हो गया 0। यहाँ पे डी डालते हैं सर से हम 1, क्लॉक है 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ओके करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो हमने 2 सेम इनपुट्स है ना, सेम इनपुट है, देखिए 1 एंड यहाँ पे भी 1,
तो उसके ऊपर भी हमने 1 के साथ हम मतलब उसे भी हम हाई करके उसके साथ भी डील कर सकते हैं, उसमें भी हमें ये जो हमारा क्यूएन है वो है हमें, ठीक है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस आरडी फ्लिप फ्लॉप। अब हम देखते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है बाद में हम उसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे। क्यूएन है, दिस इज आर डी एंड दिस इज आर क्यू एन प्लस 1 जो कि हमारा आउटपुट है। जो है पहले हम उसके दोनों के क्यूएन और डी के कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। बेसिक कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन सा मिलता है हमें? एन क्या मिलेगा? 0 1 हाँ। 1 0 हाँ, और 1 एंड 1, करेक्ट, गुड। n प्लस 1 इसके बेसिस पे बताइए मुझे, d अगर मेरा 0 है, ठीक है, d अगर मेरा 0 है चाहिए क्यू एन प्लस 1। देखो क्यू एन क्या है यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, ओके। अब b हमारा 1 है तो क्या आएगा? 1 ओके। अब b हमारा अगेन 0 है तो क्या आएगा? 0 ओके। 1 है तो क्या आएगा? 1 ओके, तो दैट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अभी कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है उसका आपको फॉर्मूला इसके ऊपर से बता सकते हो कि क्या फॉर्मूला बन रहा है? क्या बनेगा? क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी, ऐसा बोल सकते हैं हम। ये दोनों सेम है, डी और क्यू एन प्लस 1। यस सर। क्यू एन का मतलब क्या है? क्यू एन मतलब क्या है? करंट स्टेट, ठीक है। और क्यू एन प्लस 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा? हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो कौन सा होगा? मतलब कि हमने इनपुट्स डाले तो अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा? करंटली सपोज मैं 0 होल्ड कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो मैंने इनपुट्स डाले तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे नया स्टेट क्या मिलेगा? सपोज 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, इट डिपेंड्स, राइट? यस मैम। ओके, तो ये क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी, क्योंकि आप देख लीजिए बेसिक सीधा ये है हमारा, दोनों क्या सेम जा रहे हैं? यस मैम। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अभी हम एक्साइटेशन टेबल उसका देखते हैं। एक्साइटेशन टेबल के लिए भी क्यू एन, देन क्यू एन प्लस 1 and then over here we are going to have b. combination कौन से बनेंगे? 0 0, then 0 and 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ओके। अब बताइए मुझे, जब क्यू एन 0 एंड क्यू एन प्लस 1 0 है तो d क्या मिलेगा हमें? इसके ऊपर से बताना है, ये जो हमने टेबल बनाया है ना अभी, इसके ऊपर से बताइए। नहीं सॉरी मैंने थोड़ा उधर हो गया। टेबल के ऊपर से बताइए, क्यू एन प्लस 1 0 तो क्या आएगा? डी। 0 हाँ करेक्ट। अब क्यू एन 1 है, ये हमारा 1 है, तो क्यू एन 1 ये, एंड क्यू एन प्लस 1 भी 1, तो क्या आएगा? डी हमारा 1 करेक्ट 1। नाउ हमारा क्यू एन 0 एंड क्यू एन प्लस 1 भी 0, 0 तो क्या आएगा? 0 0 करेक्ट। और यहाँ पे 1 1 में 1 ओके करेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन टेबल, फाइन। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे ट्रुथ टेबल के ऊपर से हम आइडेंटिटी, ये हमारा क्या था यहाँ पे, दिस इज आवर ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के ऊपर से हमने आइडेंटिफाई किया हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के ऊपर से हमने आइडेंटिफाई किया है हमारा एक्साइटेशन टेबल। आर वी क्लियर विद दिस मच? यस मैम। ओके फाइन। सो आज हम यहाँ तक का रख रहे हैं। हमारे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा विच इज अबाउट आर टी फ्लिप फ्लॉप। अभी हमने आर एस, जेके एंड डी ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स कर लिए हैं, और तीनों के ट्रुथ टेबल्स, तीनों के सर्किट्स वी हैव सीन, वी हैव स्टडीड। In next class, we are going to begin with our T flip-flop. Is that okay? Okay. Hope you enjoyed the class. Yeah. Yes ma'am. Okay, fine. So with this, I am going to wind up the class for a day.
हैव अ लवली वीकेंड। हाँ, आपको आज अभी नेक्स्ट सेशंस नहीं है, वी आर डन विद द क्लासेस टुडे। Okay, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, Bye, thank you, ma'am. ma'am. Have a Bye, lovely- ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you. Bye, ma'am.